So let me know if you face some challenges with the internet speed, because I do see again. So let me know. I can go a little slow and I can repeat also. Okay. So the concepts which we will learn today is what we call as speed and velocity, and then we also have what we call as average speed and average velocity. And before that, we need to understand what we call as uh, uniform motion. Sir, Yeah. In today's class, we'll try and understand what is uniform motion, non-uniform motion, and we'll see that how much of it can be covered around what we have as a concept called speed, average speed, velocity, and average velocity. And first come like uniform motion. So कभी सुना है ये word, like what is uniform motion? Movement, हम movement से related ही है, like we're talking about motion as a topic. So उसके अंदर what could be uniform motion and what could be non-uniform motion? I think so. Movement at a specific and particular consistent speed is uniform motion, and non-uniform is when the speed is not consistent. Okay, I think that's very appropriately put. So uniform word itself is very explanatory. So when movement, so if you have to travel from a point A to a point B, basically, that is what you need to achieve. So the starting point is A and the end point is B. Okay, so what happens is uniform motion, and basically the definition says that if you have a movement which happens at a fixed rate, so what does that really stand for? So fixed rate, what does it mean? That if you go from one place to another, and that distance could be anything, you have a specific interval, a specific distance from one place to another. If you measure the amount of distance which you travel in, let's say, a specific interval of time, let's say every 1 minute, you can say after 1 minute, you, let's say, travel 100 meters. So at the end of 1 minute, you travel 100 meters. And if you travel at the end of 2 minutes, you are at a position which is 200 meters, and so on. And 3, you are 300. At 4, you are 400. At 5, you are 500. At 6, you are 600, and so on. So ultimately what is happening is that in the first minute, the distance which you traveled is 100 meters. In the second minute basically, the distance which you traveled again is 100 meters, because you were at 100 already and you moved to a position which is at 200. So the distance which you ultimately traveled in second minute is itself 100 meters. And if you look at third minute also, you still traveled from this position to this. That's on the third minute, and that also is again 100 meters. So what we are observing is, with every minute passing, the distance which you travel in that minute is still the same, right? So meaning that we are traveling equal
distance in equal intervals of time. Equal distance in equal intervals. So 1 minute, 1 minute, and 1 minute. Every minute you're traveling equal amount of distance. So that's the definition of a uniform motion basically. That if we travel equal distance in equal intervals of time throughout the entire journey, we call it as uniform motion. Yeah? But it doesn't happen always, right? कभी आपका क्या मन करेगा थोड़ा तेज चलने का, जैसे शुरू में आप वॉक करने जाइए and you are full of energy and then you start brisk walking, initially आपके अंदर एनर्जी है and you speed up, थोड़ा सा तेज स्पीड होती है, you maintain a certain speed. तो ऐसा हो सकता है अगर हम वॉक का एग्जाम्पल लें, सपोज कोई वॉक करने जाता है तो व्हाट वी कैन से इज कि मे बी इनिशियली शुरुआत में इन द बिगिनिंग ही मे ट्रैवल कि हर मिनट में ही इज कवरिंग मे बी every minute in the beginning he is covering, let's say, 100 meters. That's too less, I guess. So maybe 200 meters every minute in the beginning because he is full of energy. अब जब थोड़ा चल लिए 10 मिनट चल लिए तो what he realizes he's now a little bit tired and he cuts down on his pace, थोड़ा सा slow down करते हैं. So the rate at which he's walking comes down. तो फिर उसके बाद क्या होता है, now it is in the middle of the walk, so what he does is every minute in this case 1 minute में his pace comes down to 150 meters. राइट फिर उसके बाद ऐसे भी 5-10 मिनट स्पेंड कर लिए. सो ही ट्रैवल्ड लाइक दिस फॉर 10 मिनट्स, ही ट्रैवल्ड लाइक दिस फॉर मे बी द बल्क ऑफ इट विच इज लाइक 20 मिनट्स एंड एट द एंड क्या है, जब वो मे बी ही डज अ 40-minute वॉक तो लास्ट के 10 मिनट में ही फर्दर काइंड ऑफ कट्स डाउन. तो उधर जो उसकी पर मिनट में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है दैट इज अराउंड 100 मीटर्स. सो इस तरीके से इन्होंने लास्ट के 10 मिनट्स बिताए. राइट ऐसा होता है. कभी आप ट्रेडमिल पे आप वॉक करोगे तो दैट्स आल्सो हाउ पीपल डू. दे डिसाइड एक थोड़ा सा तेज स्पीड पे स्टार्ट करते हैं, देन दे ग्रेजुअली स्पेस आउट, थोड़ा सा स्टेडी हो जाता है, उस पर दे कवर मैक्सिमम डिस्टेंस एंड वी ट्राई टू वेन डाउन, थोड़ा सा नीचे आके एंड देन कूल ऑफ एट द एंड, फिर रोक देते हैं. तो कुछ इस तरीके से इन्होंने भी किया. तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज शुरू के जो 20 मिनट्स शुरू के जो 10 मिनट में इन्होंने ही वॉज ट्रैवलिंग एट 200 मीटर्स. इनकी स्पीड, मतलब इनकी स्पीड तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इन एवरी मिनट ही वॉज ट्रैवलिंग 200 मीटर्स. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 20 मिनट्स तक इन्होंने क्या किया, ही वॉज ट्रैवलिंग 150 मीटर्स एवरी सेकेंड. एंड उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर एवरी मीटर्स ही वाज ट्रैवलिंग लाइक 100 मीटर्स. तो इनकी जर्नी में हर मिनट एक जैसा नहीं है. तो इफ आई वर टू काइंड ऑफ यू कैन से इनके लिए बनाए, जैसे सपोज ये ए से स्टार्ट हुए और एट द एंड बेसिकली यहाँ बी पे ख़त्म हुए, तो शुरू के 10 मिनट्स तो कुछ ऐसे लगेंगे. सपोज इनका पर मिनट ये 200 मीटर्स है, फिर 200 मीटर्स और फिर 200 मीटर्स एंड सो ऑन. इस तरीके से ये शुरू के 10 मिनट्स तक चलेगा इनका, 1 2 3 अप टू डॉट 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 10 मिनट्स तक. राइट उसके बाद के उसमें क्या हुआ कि इनका जो डिस्टेंस है दैट ग्रेजुअली कम्स डाउन टू 150. यानी अब इस पॉइंट से आगे ही इज ट्रैवलिंग 150 मीटर्स पर मिनट. तो 11 12 13 ऑल द वे डॉट 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 अप टू मे बी इन्होंने यहाँ तक ट्रैवल किया. एवरी मिनट ही इज ट्रैवलिंग 150 अप टू ये 30 मिनट्स तक, यानी 10 से लेके 30 मिनट्स तक.
राइट ना। उसके बाद का जो इंटरवल है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें ये ही इज ट्रैवलिंग मच शॉर्टर। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो पर मिनट डिस्टेंस है ये बड़ा है कंपेयर टू दिस वन, ये 150 है, और इसको और छोटा कर देते हैं। सो दिस इज लाइक 100 एंड देन ही कम्स टू ए स्टॉप एट द एंड ऑफ 40 मिनट्स। तो इनकी इनकी जो जर्नी में जो इंटरवल ऑफ डिस्टेंस है पर मिनट इज नॉट कंसिस्टेंट, अनलाइक दिस गाय। यहाँ पे जो बराबर मिनट में, यानी हर मिनट में ही वाज ट्रैवलिंग इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बेसिकली। तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म मोशन, एंड दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और ये इट इज प्रैक्टिकल, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी दिस हैपनिंग नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज एज अगर आप अपनी बात करें तो आई डू नॉट नो व्हाट माई पेस इज, हाउ मच डिस्टेंस आई विल ट्रैवल इन दिस करंट मिनट। मैं आई कैन नॉट कमांड माई बॉडी टू सेट अ पेस। मतलब मैं कोई एक्सटर्नल कोई बटन नहीं है मेरे अंदर कि आई कैन कमांड कि ओके दिस मिनट यू विल हैव टू ट्रैवल 200 मीटर्स, ऐसा कुछ नहीं है। But something like that can be done in motors. You know, there are motors, all kind of motors. Something like a car, you can set a speed on it. Like some cars do have those controls where you can set the speed. तब क्या होगा, वो एक बराबर इंटरवल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इन पर मिनट बेसिकली। अदरवाइज अगर आप उसको नहीं यूज करेंगे तो कार भी आपकी बात नहीं मानेगी। तो इफ यू कीप योर फुट ऑन योर पैडल, तो वो जो स्पीड है उसमें आपकी स्पीड भी आपने देखा होगा कार के अंदर, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। वो मीटर जो होता है स्पीडोमीटर, वो इट्स नॉट ऑलवेज ए फिक्स वैल्यू, इवन दो यू मे थिंक दैट इट इज फिक्स, ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ माइनर मूवमेंट उसके अंदर फिर भी चल रहा होता है। सो दैट इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स कि आपको जो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट यू विल सी इज this non-uniform motion. Only in certain situations you possibly would get uniform motion जहां पे controlled होता है। अब motion, as I was telling you, motion doesn't always mean it is in a straight line, even though we are kind of considering it. बट कुछ और केस में आपको एक दो ऐसे केस बताता हूं जहां पे यूनिफॉर्म मोशन होता है एंड इट इज नॉट नेसेसरली लीनियर। इस आपके घर में सबने देखा होगा मिक्सी होती है, तो वो मिक्सी के अंदर जब आप बटन दबाते हो तो इट स्टार्ट्स टू स्पिन। जिसके अंदर रोटर ब्लेड होता है वो स्टार्ट्स टू स्पिन। तो वो जो स्पिन करता है उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रोटेशंस होते हैं, कितना राउंड वो लगाता है पर मिनट। सो फॉर ईच बटन लाइक ईच कमांड ऑन इट, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ एक कंट्रोल, एक दो तीन, एक मीटर जैसा रहेगा कुछ, किसी में ऐसा होगा सर्कुलर, किसी में इट इज अ सेट ऑफ बटन्स लाइक दिस ऑन दैट बॉक्स। यू हैव 1 2 एंड 3 ऐसे बस नंबर्स लिखे होते हैं। तो व्हाट दिस इज एक्चुअली टेलिंग यू इज कि इस कंट्रोल से आप उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ दोज ब्लेड्स जो घूम रहा है जिस तेरी स्पीड से, उसको आप सेट कर सकते हो। एंड वंस यू सेट इट तो वो उसी स्पीड पे मूव करता है। एंड दैट्स ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वहां कंट्रोल है। इवन दो इट इज नॉट ए लीनियर मोशन, इट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। we're not going to go very much detail उस direction में because it's not in our scope right now, but I'm just giving you कि uniform motion is achievable in certain cases where there is a way by which we can command that object or that machine accordingly, right? But हमारे जैसे ह्यूमन बॉडी है तो यू कांट फिजिकली सेट दैट अप, राइट? तो ये तो रही आपकी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब रही बात what is basically next thing is speed, coming to speed। तो कोई मुझे बता सकता है what is speed by far, क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है?
Speed equals to distance over time. This is the basic formula that we use to take up speed. फॉर्मूला हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो बेसिकली क्या है, ये डिवीजन करके हम क्या अचीव क्या कर रहे हैं? सो व्हाट वी आर We are टेलिंग इज कि achieving distance traveled per second of a unit of time, and that is speed. ओके, तो अगर अगर आप ये बोल रहे हो कि टोटल डिस्टेंस से फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, अगर ये डिस्टेंस मान लो लेट्स से 500 मीटर्स है, and if you took let's say 120 maybe 100 seconds to cover this distance, so what you are saying is the speed at which whosoever covers it is 500 divided by 100 into which is equal to 5 meters per second, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि स्पीड इज बेसिकली द रेट एट विच, यानी एक टाइम व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय टाइम, व्हाट यू आर सेइंग इज एवरी सेकंड आप 5 मीटर्स चल रहे हो। सो इट इज बेसिकली अ रेट एट विच द डिस्टेंस इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो आई कैन ऑल्सो कॉल स्पीड एज rate at which distance is covered. So when you say rate, that means it has to be with respect to something else. Distance with respect to what, and that covered with respect to time. WRT in short, with respect to time. That means आप ये मान सकते हो कि from A, when you started at the 1 second interval, you travel 5 meter, फिर दूसरे में another 5, तीसरे में another 5, चौथे में another 5 and so on. अब for how many seconds? 100 seconds तक आप ऐसे ही कर रहे हो। बट अगर आपको मैं बोलूं कि दिस इज जस्ट एन assumption, कि मतलब अगर आपको दौड़ने के लिए कोई बोले तो आप हर सेकंड में 5 मीटर्स कवर नहीं कर रहे होंगे। आई मीन यू डोंट नो कि आपकी स्पीड एक जैसी है कि नहीं, लाइक यू हैव ए कांस्टेंट स्पीड। सो इसमें ये जो स्पीड जिसको हम बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट इज बेसिकली एन एवरेज स्पीड। इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, बिकॉज इवन दो हमारी स्पीड कुड वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, हर सेकेंड टू सेकेंड, if I find an average as in when I want to calculate the average, यानी मैं किस रेट से इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसका जो एक एवरेज वैल्यू है, that is what we calculate using this formula. आप समझ रहे हैं? तो ये जो स्पीड आपके सामने निकल के आती है, दिस इज एन एवरेज स्पीड, ठीक है। और स्पीड एज यू नो इज डिस्टेंस एट वॉट रेट आर यू कवरिंग अ डिस्टेंस। तो ऐसा हो सकता है कि इस पूरे इंटरवल में दिस इज द थियोरेटिकल थिंग, कि हर इसके हिसाब से हर सेकंड में मैं 5 इंटरवल, दिस इज बेसिकली थियोरेटिकल। प्रैक्टिकल क्या है, रियल लाइफ में कैसा होता है, अगर आप ए से चले तो शुरू में मे बी, अगेन जैसा हमने नीचे एग्जाम्पल लिया था, 10 मीटर्स स्पीड गई, 10 मीटर्स एक सेकंड में, 10 मीटर्स दूसरे सेकंड में भी 10, फिर थर्ड सेकंड में मे बी 8 मीटर्स गई, एंड ये यहाँ पे 6 हो गया, ये यहाँ पे 4 हो गया, फिर मैंने बढ़ा दी थोड़ी सी, 6 हो गया, फिर 8 हो गया। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, इस फर्स्ट सेकंड में मेरी स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकंड, तो दैट मीन्स इट इज 10 मीटर्स पर सेकंड स्पीड। तो यानी फर्स्ट सेकंड में मेरी स्पीड इज 10 मीटर्स, सेकंड में मेरी स्पीड है क्योंकि अगेन 10 मीटर्स बिकॉज आई स्टिल कवर 10 मीटर्स, थर्ड में मेरी स्पीड है 8 मीटर्स पर सेकंड, फोर्थ सेकंड में है 6 मीटर्स पर सेकंड,
इसमें 4 मीटर्स पर सेकेंड, फिर 6 मीटर्स पर सेकेंड एंड 8 meters per second. So every second my speed is actually different, and this is the practicality. But when you divide distance, overall distance कितना आपने travel किया with the overall time in which you travel that much distance, that value of speed is what we call as an average speed. So, did you understand the difference between the theoretical, like that in theory, this 5 meters per second actually means that you're traveling equal 5 meters in every second. That's the theoretical thing. That's not the real thing. Real में क्या होगा कि you may have you may travel like 10 meters. ये 10 is actually in meters. तो ये distance है हमारा ऊपर, इसको हम distance बोल सकते हैं, और ये time बोल सकते हैं नीचे. तो जो every first second में I travel 10 meters, second में I travel 10, third में I travel 8 meters, fourth में I travel 6, fifth में I travel 4, 6, 8 and so on. So इसके हिसाब से जो मेरी speed है in the first second is 10 meters because it is per second, 1 second में, तो आप 1 second के हिसाब से भी इसको use कर सकते हैं. So in that first second जो मेरी speed है, that is distance traveled in that second divided by the time, which is 1 second. So 10 meters divided by 1 second gives me 10 meters per second as a speed during the first second. इतना समझ में आया? Yes. Similarly in the Yes. Similarly in the second second मैं मेरी speed भी same है because यहाँ पे मैं 10 meters चला हूँ. जब मैं थर्ड सेकंड में गया तो मैं थोड़ा सा स्लो डाउन कर गया. आई डोंट नो, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. मुझे कोई गाड़ी तेज आते हुए देखी, सो आई डिसाइडेड टू स्लो डाउन. तो मेरी स्पीड उस सेकंड में आई जस्ट ट्रैवल्ड 8 meters. so that's why मेरी स्पीड इज 8 meters. एंड सिंस आई वाज कंटिन्यूइंग टू स्लो डाउन, तो उसके नेक्स्ट सेकंड में भी और स्लो रही, तो दैट वाज 6 and 4. फिर व्हेन द कार गॉट क्लियर्ड आउट, रास्ता क्लियर हो गया, देन आई डिसाइडेड टू स्पीड अप अ लिटिल. फिर 6 meters चला उसमें, 6 meters per second and then 8 meters and so on. एंड इस तरीके से चीज़ें होती रहती हैं. So in some time duration you would be a little faster compared to the other time window, and the reason could be anything. There is nothing like hard and fast. Of course tiredness could be a reason, of course the road quality could be a reason, of course distraction could be a reason, traffic could be another reason, unwanted hindrances हो गए आपके, कोई there is some animal which crossed you, or या कुछ और हो गया, somebody crossed the road and they came in front of you and you were stopped as a result. Altogether कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में आप चले ही नहीं, रुकना पड़ गया आपको. तो जो रियलिटी यही है. बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि इन 100 सेकंड यू स्टिल कवर्ड 500 meters. तो जो इसके हिसाब से आपकी जो स्पीड कैलकुलेट होती है, जिसको हम ये फॉर्मूला अभी तक आप यूज करते आ रहे हो, दैट एक्चुअली कैलकुलेट्स द एवरेज स्पीड वैल्यू. हमने सारी स्पीडों को बैलेंस आउट करते हुए एक फिक्स स्पीड बना दी. तो इफ यू रिमेंबर, आपने 7th नहीं तो 8th के अंदर आपने एवरेजेस की बात करी थी, राइट? तो एवरेजेस में क्या होता है, सपोज इफ आई डिसाइड टू प्लॉट, 7th में भी था, स्पीड एंड विद टाइम. अगर मैं ये जो इंडिविजुअल सेकंड्स के अंदर जो मेरी स्पीड रही है उसको मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ. लेट्स से दिस इज 2 meters per second, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8 and this is 10. So what I've done is I'm taking the speed values along the y-axis, this vertical line, and my time along the horizontal line. और टाइम को मैं यहाँ 0 से लेके मैं 100 सेकंड तक के लिए वेरी करता हूँ, सपोज 100 सेकंड. और हर सेकंड में जो मेरी स्पीड है, जैसे यहाँ पे निकाली है, उसको मैं प्लॉट करता हूँ से
ये 10 है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 4 5, ये यहाँ तक 5, ये यहाँ तक 10, 15 seconds, 20 seconds, 25 seconds एंड सो ऑन। ऐसे ही 100 तक मैं प्लॉट कर लेता हूँ एंड मार्क करता हूँ यहाँ पे वैल्यू। जैसे ये फर्स्ट सेकंड में 10, सेकंड में भी 10, थर्ड में इट इज़ 8 विच इज़ लाइक राइट ओवर हियर, फोर्थ में इट इज़ 6 विच इज़ राइट ओवर हियर, फिफ्थ में इट इज़ 4 विच इज़ राइट ओवर हियर। तो ऐसे ये जो ग्राफ इसको लाइंस को कनेक्ट करके जो मेरा हो सकता है ग्राफ कुछ इस तरीके का बने फॉर हंड्रेड्स ऑफ सेकंड्स तक, जो मैंने जितना भी स्पीड को मेजर करूं। तो मेरा जो दिस इज व्हाट माय रियलिटी इज, मेरी स्पीड इस तरीके से चेंज हो रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब मैं नीचे हो रहा हूँ समझ लो कोई जानवर आ गया, कोई डिस्टर्बेंस हो गया कुछ वजह से मुझे, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ दैट मीन्स द रोड इज क्लियर, the road is clear, I have the intention also, I have the motivation to speed up, तो मैं फिर ऊपर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, फिर कुछ हुआ, फिर नीचे आ गया। तो रियली ये होता है। पर व्हेन यू से थियोरेटिकली द स्पीड इज 5 मीटर्स पर सेकंड, दैट मीन्स इस सब ऊपर नीचे के बावजूद आई एम स्टिल एबल टू मेंटेन ओवरऑल यू कैन से एक वैल्यू विच इज 5 meter per second, which is a line somewhere in between। यानी ये एक स्ट्रेट लाइन, अगर इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते पूरा ऐसे बनाता तो इट कुड हैव बीन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इज योर एवरेज स्पीड, जो उन सारी रीडिंग्सों के बीच में से कहीं होगी। इट वुड बी लोअर देन द हाईएस्ट वैल्यू, जितनी भी मैक्सिमम स्पीड से आप भागे, कहीं पे आपको लगा कि बहुत तेज भागना है, बहुत डिले हो गया, उससे नीचे, और जो लोएस्ट वैल्यू है उससे ऊपर एक वैल्यू होती है जिस विच इज व्हाट वी कॉल एज द एवरेज स्पीड, राइट? एंड दैट इज व्हाट वी कैलकुलेट यूजिंग दिस रिजल्ट। आप समझ रहे हैं इस बात को? Yes. ठीक है, तो दैट्स हियर। तो स्पीड एंड एवरेज स्पीड आपके एज ए कॉन्सेप्ट आई थिंक इट शुड मेक सेंस। और अगेन इसमें डिस्टेंस इज द की, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट द डायरेक्शन पार्ट ऑफ इट। जैसे अब कल हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का मेजर है, बट उसमें हमको पता होता है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वी डोंट केयर मच अबाउट वेयर वी वेंट इन बिटवीन। इवन तो लीनियर के केस में, जैसे इस केस में डिस्टेंस 500 मीटर है, और अगर इसी दिशा में गए हो तो फाइनल पोजीशन भी बी है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर हैं यहाँ पे, बिकॉज अल्टीमेटली द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस आर द सेम एज you would care for when you find the distance versus जब आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ ए से बी गए और बी से वापस लौट के ए पे आ गए, और आपको टाइम लगा, से आई एम गिविंग एन एग्जांपल, ये ए है, ये बी पे गए, ए टू बी आप गए, वही 500 मीटर्स है, और आपको लगा 100 सेकेंड्स, और आप बी से वापस ए आ गए, फिर से आपको लगे मे बी आप थोड़ा सा थक गए थे, तो बेसिकली आपको 200 सेकेंड लगे, काफ़ी आराम से आए, लेट्स से वॉक करते हुए। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली वेयर आर यू लैंडेड एट द सेम स्पॉट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। ठीक है, तो इस केस में आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों बराबर हैं। ठीक, सो दैट मीन्स अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बराबर है, तो अगर इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना आप ट्रैवल करें ये निकालना है, तो डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ द पाथ होता है, यानी 500 आप आगे गए और 500 ही वापस आए, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 500 मीटर्स प्लस 500 मीटर्स विच इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। ये आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और जो डिस्प्लेसमेंट है
इज इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों बराबर हैं आपकी, आप वापस वहीं लौट गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर्स। तो अगर कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, तो आप बोलोगे इट वुड बी 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा आपको, 100 सेकेंड जाने में और 300 सेकेंड आने में, तो दैट इज 100 प्लस 200 seconds, which gives you 1000 over 300 seconds, meters over 300 seconds, which is this will come out to be, दो zeros ये कट जाएंगे, तो 10 over 3, which is nothing but 3 whole 1/3 meters per second। ठीक है, तो एवरेज स्पीड तो इसकी ये हो गई। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट के केस में जो स्पीड होती है, जो स्पीड को मेजर करते हैं, या ये कह लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज वेलोसिटी। यानी तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज velocity is defined as rate of, जैसे rate at which distance is covered with respect to time, तो rate of change of displacement with respect to is what we define as velocity। यानी आप अल्टीमेटली इसमें भी डिस्प्लेस हो रहे हो, यानी आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, और किस हिसाब से चेंज हो रही है वो मैटर करता है। तो हर सेकंड पे आपकी पोजीशन चेंज हो रही हो सकती है, यू नो, बट अल्टीमेटली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एन एंटायर जर्नी, कोई भी एक जर्नी के अंदर आपको यू नो मेजर करनी है वेलोसिटी, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपकी पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हुए थे और आपकी एंड पोजीशन क्या है। तो जैसा ये एग्जांपल था इसमें आपकी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन सेम है, तो वेलोसिटी जो इस केस में निकलेगी वो होगी नेट डिस्प्लेसमेंट, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं। कितना आप डिस्प्लेस हुए, द टाइम टेकन, टोटल टाइम, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एवरेज वेलोसिटी। इसमें भी क्योंकि आर यू देयर गाइस, आर यू देयर, सुन पा रहे हो? Yes. अनुष्का, कैन यू हियर? Yes, sir. ओके, तो एवरेज वेलोसिटी जैसे एक जर्नी के केस में निकालें, तो इस पे आपको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ध्यान देना है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिवाइड बाय द टोटल टाइम, तो इस केस में 0 आपके डिस्प्लेसमेंट है और टाइम तो आपको 300 सेकंड लगा ही लगा है, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी वुड बी कंसिडर्ड एज 0 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो यानी डिपेंडिंग ऑन कि आप कहां पहुंचे, आपकी एवरेज वेलोसिटी कुड मैटर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस जर्नी में मानते हो अपने आप को, तो आप सिर्फ ऑनवर्ड जर्नी आप लौट के नहीं आए होते, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकाली जा सकती थी, इट वुड हैव बीन सम फाइनाइट वैल्यू। या आप लौट के वापस कहीं बीच में रुक जाते, सपोज यहाँ पे रुक जाते एक पॉइंट मार के, जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था, तो भी कुछ वैल्यू आती, बिकॉज यू वुड स्टिल हैव सम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। So that is how average velocity is computed and this is how your average speed is computed। और दोनों में क्या अंतर है ये आपको इससे भली भांति समझ में आना चाहिए। अगेन इसमें एक चीज हमको समझने वाली है कि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज का मतलब ये है कि रियली में चीजें सेम नहीं होती हैं, सेम स्पीड हर सेकंड में नहीं होती, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसलिए उस नॉन यूनिफॉर्मिटी
जब है उसमें एक वैल्यू क्या है जो उस पूरे जर्नी को रिप्रेजेंट कर सकती है, वो वैल्यू एवरेज वैल्यू ही होती है। जैसे हम मार्क्स का एवरेज निकालते हैं टू से कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो मेरे सारे मार्क्स को अकाउंट कर सकती है। किसी में मेरे ऊपर ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, किसी में थोड़े कम, बट एवरेज इज वन थिंग विच कैन से कि अगर इतने मार्क्स मेरे सारे सब्जेक्ट में आए होते तो वो सब मेरे एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Like, I mean, it is equivalent to what actually you must have gotten. So similarly, average speed and average velocity are concepts in terms of at what rate, at one value of rate can be used to define the entire journey. Entire journey. मतलब आप बोल सकते हो कि मैं इस स्पीड से ये पूरे जर्नी ट्रैवल करके आया, स्पीड बोल सकते हो। और कोई पूछे वेलोसिटी, तो आप बोलोगे वेलोसिटी तो यही है भाई, मैं अपने घर ही लौट के आया हूं, तो टेक्निकली बीच में आपने मुझे देखा नहीं, तो आप मान लीजिए मैं कहीं गया ही नहीं, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द पोजिशन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आज आपके कवर हुए मेरे हिसाब से। तो अब इस पे मैं आई विल ट्राई एंड सी वी कैन सम क्वेश्चंस आई विल शेयर इट विद यू, ठीक है। Let's see if we can do some more stuff tomorrow. We have a class at the same time. Okay, I'll see you guys tomorrow then.